ना हो बस। तो बेसिकली ये बहुत दिखाने का मकसद ये कि आपको एक इंकरेजमेंट आए कि व्हाट यू कैन डू, कि इसके फील्ड में क्या है, ग्रोथ क्या है। So these projects which I create, some of them are listed here. IVA chatbot, detecting hard disease from the computer vision techniques, understanding sentiments. हम लोग रोज देखते हैं कि फेसबुक होता है, हो गया अमेजोन हो गया, ये सारे हमारे जो टेक्स्ट होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, डेटा है ये, इनसे वो हमारे सेंटिमेंट्स ढूंढ रहे होते हैं कि आपका ये अच्छा रिव्यू है, बैड रिव्यू है, और उसकी बेस पे यू स्टार्ट गेटिंग फीडबैक कि नाउ ओके यू लाइक दिस, सो दिस इज द प्रोडक्ट यू व्हिच यू आर मोस्ट लाइकली टू बाय। उनको ये सब डेटा से पता चलता है। तो इमेजिन इफ यू वुड बी एबल टू डू सेम थिंग। This course is entirely going to be about hands-on practice, and you will be able to at least know the vision कि आप कहाँ जाना है आपको। I know most of the people who have joined here are beginners. They know nothing about coding, so no need to panic. We will start from the very basics. We will start from the installation, and we'll take you forward. कि आपको I'm not saying you'll get perfect after this entire boot camp, but I can assure you कि आपके पास एक path होगा कि where you have to go next, and you can definitely go. Please mute yourself. थैंक यू। तो आपके पास एक विजन होगा कि वेयर यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद दिस कोर्स, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। हमारा विजन इज वेरी सिंपल। और विजन इज वेरी सिंपल कि आपके पास एक लर्निंग, एक न्यू स्किल डेवलप हो जाए। पाइथन वी ऑल नो कि आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, बिजनेस हो, फाइनेंस की हो, बीबीए हो, जो भी हो, पाइथन इज गोइंग टू बी वन लैंग्वेज व्हिच इज गोइंग टू बी कंपल्सरी थ्रू आउट। अगर आप बाहर के कोर्सेज देखें तो अभी से हो चुका है, पाइथन इज ऑलरेडी नाउ कंपल्सरी फॉर एवरीवन। So knowing that language will be an added on skills on your resume, and will really sound great when you will be able to use Python for data analytics and machine learning. So what's expected from you? Nothing. We just need your interest and dedication, and that's it. Now let me show you the entire bootcamp journey, because it's very good to have a clear understanding कि आपको क्या आपको इस bootcamp के बाद आपको क्या what you can achieve. So basically, we'll start from the very basics, from Python fundamentals. We'll explore the variables, types, loops, everything you need to be very strong and fluent in Python. Once we are done with this, we will start working on the data visualization analysis part, which is basically drawing pie charts, histograms, and how to draw insights from them. Basically, company को जो आज ये company को क्या चाहिए, enterprise जो enterprises हैं, they want you data as a data scientist, they want you to provide them with the insight. कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी है तो सेल्स में कैसे इंक्रीज होगा, हाउ कैन आई डू बेटर एवरी ईयर, इफ यू कैन डू दिस यू आर $1 million पर्सन फॉर देम, ठीक है। उसके बाद आपने ये जब कर लिया, सो देन कम्स द मॉडल बिल्डिंग फेज। यू आर गोइंग टू मेक योर ओन मॉडल्स। ऑब्वियसली यू विल नॉट गो इनटू डीप के आपने एल्गोरिथम्स खुद नहीं बनाने। देयर आर लाइब्रेरीज व्हिच वी गोइंग टू यूज फॉर द मॉडल बिल्डिंग, but that's fine right now. You can always explore those libraries from the articles on Medium and data science community. But we'll use those libraries to make models, and then we'll make our own predictions from those models. कि भाई एक unseen data देंगे और बोलेंगे भाई आप predict करो. For instance, let's say a GPA predictor. You can input a lot of data about marks, and then you can ask that model to predict your GPA. Depending on how accurate and how well your model built, it can provide you certain accuracy. And then comes the major part, the feature selection, which features are important. And lastly, in order to make everyone engaging till the end of this course, we have a datathon. Basically, in this competition, you all will be competing. And once you are trained with all the techniques of data analysis, you will be asked to solve a problem on Kaggle. You will be given a problem set, and you will be given some few days to solve on that problem. And the best notebook will be awarded, give a shout out from our DSC IBA page. All right, so let's move further. Who will be your instructors? So I've already introduced myself. So alongside with me will be Uzair Adamji, Uzair Aslam, and Hamza Raza, who will be guiding you throughout this course and will be helping you with your code bugs and fixes and whatever problem you might face in this entire workshop. ये रिकॉर्ड भी सर कर लें कि बाद में हम इसे सर एक्सेस भी कर लें। If someone is speaking, kindly mute yourself. So today the session is all about introduction to data analytics. Let's see what's the agenda for today. So firstly, because I know many of you are here from a commerce background and they know nothing about it, they are trying to explore the field kya hai basically. So I'm sorry for those who know already about data science and they're here to learn from the word go, they want to learn something. You have to be a little bit patient so that we can take more people together with us. Because this
field is going to be very great, and we want more people in this field, trained and ready to go into enterprise level. So we will start with basically understanding what is data science, why data analytics, what's the scope of this field, in which field you can apply after this course or doing more course after this. And then we'll go ahead with installing our setup, environment setup. क्या किस पे काम करेंगे? I will walk you through the entire installation process, and then Jupyter Notebook, introduction to GitHub a little bit, and then we'll print a first program. For those who haven't coded a single line, don't worry, you are going to code your first single line at the end of this session. So hang on. So what is data science? In 2013, when a lot of data was acquired, people started realizing that इतने सारे data का we can do a lot of wonders. तो जब बहुत सारा data आया, so the goal of data scientists was to make useful findings. खाली बस train नहीं करना. We want to find useful insights for a business company. Let's say for Unilever or for something like P&G, their main interest will be कि how they can increase the production of their products. तो वो ढूंढेंगे उसमें से कोई insights कोई बंदा निकाल के दे सके उन्हें कि भाई ये चीज आप इस तरीके से बेचेंगे तो that will be very effective in the coming years, and that is what people needed in the business field. Data science can also be implemented in medical field. You can use to predict heart diseases, allowing doctors के थोड़ा flexible हो जाएं कि आपको एक चीज provide कर सकती है, उसके ऊपर doctor can obviously test के verify कर सकते हैं कि सही भी कर रहा है नहीं, because obviously data machine learning is not 100% perfect. You need doctors to verify it, and in medical AI it's a very it's a field where you have to be very careful, because you cannot just rely completely on the data, on the model you made. So what skills people think they need? एक stigma create हो चुका है कि भाई you need to be very good at coding, which is not true. You need to be good at problem solving, how to solve a particular problem. For instance, we have all done mathematics. Forget about university mathematics, calculus वगैरह को भूल जाओ. बेसिक मैथमेटिक्स सबने पढ़ी होती है कि पता होता है कि भाई x plus y क्या होता है, how to make small conditions, you can understand those conditions, right? तो उसको अगर समझ गए, then it's all good for you. You can do coding. It's simple English language. That is why Python is very famous. It's nothing but an English language. ठीक है? So you don't need to be a grand master at algorithmic design, but definitely you will learn how to code in this boot camp, but you don't need to be a master. So why data analytics? As I mentioned earlier, कि more than 300 million photos get uploaded every day. हमारे पास कभी हमने सोचा है कि हम लोग एक जगह खड़े होते हैं, we see someone and we start seeing that friend request on Facebook. How is that happening? If you ever wondered कैसे हो रहा है, तो हमें समझ में आया कि ऐसे हो रहा है कि let me try to solve this mystery. What happens is कि हमारे मोबाइल में GPS होता है, and the same GPS is from किसी और के फोन में भी होता है. So the data collect हो रहा है, हमारे longitude, latitude values, these are stored in databases. And Facebook person is say इतने proximity पे था, and they started showing that friend request to on Facebook. That is how we see the similar faces कि भाई कल इसको देखा था, and now we can see that same friend request on Facebook. It's all about data. Similarly, when you go when you YouTube पे देख लो, you search for something, for example PSL related, you will start seeing the similar videos the next day. How? Because they know what you are searching, recommended engines. That's what we call in machine learning world. So you are going to be able to create this world, create these problems and solve these problems. Similarly, for those who are from finance background, we will work out how to model finance. कि भाई financial में आप banks के लिए हो गया, banks को बता सकते हैं कि भाई investment कितनी आएगी and all that stuff. इसकी data आपके पास हो, you can train that model to help the banks to grow further. सही है? So that is how data analytics is very important in today's era. So the question comes, who is a data scientist? देखें बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके पास उन्होंने मास्टर्स कर लिया होता है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन उनकी फील्ड ही नहीं होती है. They are electrical engineers, they're civil engineers, and then they realize that that's not their field, and they want to go in something like maybe data analysis. So what they can do, they can definitely use their domain knowledge. उस domain knowledge को use करते हुए they can apply in data scientist, because data science किसी एक चीज का नाम नहीं है. You can use those knowledge of domain because you are the master of it. For example, civil engineers, they can use their knowledge of how bridges are built, how roads are built, और उसको अगर automate कर दें. What if they automate all that stuff, the knowledge they have with code? Imagine how their words will be double now, because now you will not need people. You can do with your code and your knowledge of domain. So that is
That is who a data scientist is. Now let's see what are the career prospects. After you are good with data analysis techniques, you know how machine learning works, you know some basics of modeling, prediction, then you can apply as a data analyst in companies. You can apply for data engineer, machine learning engineer, data architect. Obviously, you will have to study out of the scope of this workshop as well, because no one can become a data scientist in just a 1 month. That's given. But obviously, you will find a pathway कि अब क्या explore करना है मुझे. Okay, I know this. Now I have to focus on this thing. So that is what this bootcamp is all about. To really make people realize why this is important. But what skills do I really need? Just like I told you, you don't need any skills. You just need to be a creative. You need to have some knowledge about mathematics. That is definitely needed here. Domain knowledge होगी तो और भी अच्छा है. तो जब हम लोग finance की problem solve कर रहे होंगे, so you will find कि okay, I know about this. Is anyone saying something? Oh, no. Can you please mute yourself, everyone? Thank you. So you will learn about a lot of tools such as Python, Excel, Power BI. Mostly जो यहाँ पर हमारे पास finance के लोग बैठे हुए हैं, they would have worked with Excel, or they must have think कि Excel में सब कुछ हो सकता है. You can obviously create models in Excel as well. Regression models can be created in Excel. So why Python? Why we need to use Python? I will come to that section later, but एक अभी से बताने के लिए Excel has limitations. You cannot go beyond a certain amount of data. You cannot go train trillions of millions of data around the world. आज billions of data दुनिया में हैं. अब क्या करें उसका? So we need a language. हमें core पे जाके इसको coding करने पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा. Big data is a term you must have heard all about. So the data is so getting every day huge that we need a lot of processing power, and Excel has limitations. So what we need to learn is a good language, and Python has a great community. When we are learning Python or R, there is always a fight. Why should we learn Python and not R? I'll come to that point as well. But for now, realize that Python is very important for you to know. So once you know what skills you really need, so what about my degree? People think कि तो हमने finance में क्या, biology में क्या, law में क्या, सब बेकार है. No, ये सब बेकार नहीं है. अभी मैंने बताया कि you can use all those knowledge. So data, for example, if you are good at biology, good at law, you're good at finance, you can find similar data, you can work on that data, and you can automate those stuff. You can provide insights. इस companies को insights provide कर सकते हो कि भाई ये finance का data मेरे पास है. For example, trading होती है, forex trading होती है. You can predict कि next कौन सा जीतेगा. It's all about data and machine learning. And the better you are at this, the more better you can predict. Okay. So the tools we're going to be using in this entire bootcamp is Jupyter, obviously Python, Nova, and Anaconda is the entire navigator we're going to install. So are you all ready? So now to kickstart this journey, let me first introduce you to Python. I just right now talk about कि Python हम लोग क्यों use कर रहे हैं and what are the advantages. But I want to reiterate on this again. बहुत से लोग जो कि statistic background से होंगे, they must have used R, and they would be thinking कि R is very good and very easy to use. Python is not very hard even. But advantage क्या है Python का? Let me show you some projects I've already shown कि मैंने बनाया था. Simple project for displaying. This is nothing but a house prediction app. What it does is it accepts कि आप अपना square foot डालें यहाँ पर, सही है? Number of rooms बताएं, bathrooms बताएं, select a place and then estimate price. एक मॉडल इसके पीछे बना हुआ है which will estimate the price and will return कि भाई कितने पैसे का होना चाहिए घर, सही है? Similarly, this one, इससे मैंने दिखाया simple chatbot is nothing very fancy which I could do later but I haven't done yet. तो बस ये दिखाने का ये मकसद है कि once you will be able to make models, you can always deploy on the websites so that people can use and praise you. ठीक है? So I predicted it. तो उसने predict कर दिया कि भाई अगर 4 bedrooms हो और इतने bathrooms हो, ये जगह हो, तो उसकी इतनी price आनी चाहिए. That's a model behind the backend which is predicting it. तो आप भी ये create कर सकते हैं, ठीक है? Just need to be motivated. तो Python हम लोग इसलिए यूज करते हैं R के ऊपर because R जो है you cannot deploy. Just like I show you कि जो आपने apps बनाई है, it's all made on Python. Python is not this data science framework. It also provides web development as well. So once you made those models, you can also always deploy on the web. You don't have to recode again. The problem with R is that once you make a model, yes, it is good enough for understanding for business. But what if you want to deploy that model? अगर आप उस मॉडल को डिप्लॉय नहीं कर पाए तो उस मॉडल का फायदा क्या? सही है? अगर उसको यूज करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, you want to be able to deploy it.
So that is why Python is very important and you need to learn this. So यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अगर I'm going to take the question again as well, but still if you feel कि अभी कुछ पूछना है, still confusing लग रहा है, तो you can always ask. Any question? Arslan on the chats, you can drop on the chats. Yes, sir. I have a question. What's this? You can drop on the chat. Arslan is going to tell me the question so that people don't get echoes and all around stuff. Background voice is nine. Sir, voice नहीं बता सकते? जी Hello. जी बोलो. Sir, voice नहीं बता सकते? Question? Text? You can drop your text. Arslan is going to answer. Tell me and I am going to answer that ताकि ना ये voice background voices की description ना हो लोगों को. नबी, हाँ बोलो. ये लोग पूछ रहे हैं कि आप फ्रेमवर्क यूज करेंगे, तो हम फ्रेमवर्क यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लाइब्रेरीज लाइक pandas और numpy यूज करेंगे ना. Yes, we'll be using pandas and numpys and scikit-learn obviously for the machine learning modeling. और हम लोग ये सब modeling से बनाएंगे. हम लोग अभी इसको आगे बताएंगे और walk through देंगे हम लोग Jupyter notebooks. But essentially we are going to be using libraries. और कोई सवाल? Insights, good question. Insights क्या होते हैं? जब मैं आपको एक डेटा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इमेजिन यू हैव अ टेबुलर डेटा, आपका जीपीए दिया मैंने आपको, एक कॉलम है जीपीए का, आपके मार्क्स का, मैथ्स के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, साइंस के मार्क्स. अब इंसाइट्स क्या होंगे? इंसाइट्स ये होंगे, मैं अगर मैं चाहूँ कॉलम पे इसका मीन बताऊँ कि भाई आपके मीन मैथ्स के मार्क्स ये हैं. मीन का मतलब एवरेज होता है. सही है, किसी को नहीं पता तो इट्स फाइन. मीन का मतलब एवरेज होता है. अगर मुझे बताना कि आपके हाईएस्ट मार्क्स क्या हैं, सो इंसाइट्स ये होती है कि व्हेन यू टेल समथिंग, तो डेटा में से कुछ नहीं पता था मुझे, तो मैंने उसमें से एनालाइज किया, मुझे पता चला ओके इस बंदे के हाईएस्ट मार्क्स इसमें, दैट मींस दिस पर्सन इज गुड एट दिस सब्जेक्ट. सो वो आपको इनसाइट्स, जो बिजनेस इनसाइट्स होती है ना, दैट इज हाउ यू गेन फ्रॉम द डेटा एंड देन यू गिव टू द कंज्यूमर, द क्लाइंट्स, किसी को भी आप दे सकते हो. सो वो चीज एक्सट्रैक्ट करना इज अ टास्क. ये तो मैंने बड़ी सिंपल एग्जांपल दी है, बट व्हेन देयर इज अ थाउजेंड ऑफ डेटा, 10,000 of data, it's very difficult to predict. The best thing about these sessions are we are going to do hands on everything, और live data पे काम करेंगे हम लोग सिर्फ 100 डेटा पे काम नहीं करेंगे, we'll work on 10,000 of data. So you will exactly know कि इतने बड़े डेटा को हैंडल कैसे करना है and how to get insights from that data. ठीक है? और कोई क्वेश्चन है? I hope I'm clear enough. Definitely that. ठीक है. So the question is, can these models be deployed with the help of MERN-Stack? Yes, it can be deployed, but you will have to obviously those frameworks आपको पढ़ने पड़ेंगे. TensorFlow.js हो गया. अगर आपको deep learning का बनाना है, एक JavaScript का framework बन जाएगा, then you can make a pickle file and obviously you can deploy it with a MERN-Stack as well. That's not a problem. Explore TensorFlow.js if you want to deploy the models with the MERN-Stack. Data sheets can be backend data. I have heard about this के REST API से you can connect the Google Sheets, but again Google Sheets की भी limitation है ना, like it cannot handle millions big data के नहीं handle कर सकता, it cannot handle trillions of data even. There is a limitation to it, and everything cannot be done with these Google Sheets and Excels. Yes, Excel अच्छा है आपके small data के लिए, मतलब small से भी मैंने बता रहा था कि 10,000 भी कर लेगा, but उसकी limit है. अब और लिमिट और डेटा जो हमारे पास जमा हो रहा है रेगुलरली, इट्स लिमिटलेस, मतलब बहुत सारा डेटा है. सो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हम लोग उस पर काम कर सकें, एंड पीपल डोंट एक्सपेक्ट यू एज अ डेटा साइंटिस्ट के आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको टेक्नोलॉजीज आए. लाइक पाइथन तो आजकल कंपलसरी हो गई है, एंड देयर आर अदर टूल्स लाइक पावर बीआई, टैब्लो, व्हिच आर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जो कि आप खुद सीख सकते हैं, उतना मुश्किल नहीं है. बट पाइथन आ गई आपको, सो यू विल बी ग्रेट इनफ टू गो एनीवे. ठीक है? एनी अदर क्वेश्चंस सो आई कैन मूव फॉरवर्ड फर्दर. ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं एनवायरनमेंट सेटअप के लिए. अच्छा गाइस, आई वांट टू मेक दिस क्लियर कि स्टार्टिंग के जो फ्यू सेशंस होंगे हमारे, दिस विल बी बेसिक ऑन पाइथन. तो अगर आपको पाइथन आती है, यू फील कि नो दिस इज अ वेरी बेसिक एंड आई नो ऑल दिस, मेरे सेशन अच्छा नहीं होगा, यू कैन ऑलवेज स्किप दोस सेशंस. वी विल ड्रॉप सम असाइनमेंट्स, यू कैन जस्ट सबमिट दोस ऑन गूगल क्लासरूम. उसकी लिंक हम लोग भेज देंगे आपको, और यू कैन लीव दैट. ठीक है, सेशन. बट आपको नहीं आता because we want everyone to go along with us. So those people who are genuine, who want to learn a new skill, a Python, तो उनसे please request है कि do attend these sessions because we'll go from basics.
हम लोग शुरू से आपको पढ़ाएंगे, वेरिएबल से पढ़ाएंगे, आपको कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते में जितना हो सके हम लोग कराएं। बट ऑब्वियसली यू विल बी नीडेड टू गो मतलब बियॉन्ड दो सेशन एज वेल, आपको अलग से भी देखना पड़ेगा। वील प्रोवाइड यू विद रिसोर्सेज कहाँ से आप पढ़ सकते हैं और फर्दर, ताकि आप आगे हमारे साथ कर सकें, लाइक एक पेज पे आ सकें। बिकॉज डेफिनेटली विल गो एडवांस एज वेल, ताकि इट विल बी ग्रेट कि आप हमसे वो चीज सीख सकें जो हमें आता हो अच्छा। लाइक वी कैन टेल यू अबाउट ग्रेट स्टफ। ये बेसिक्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, बट द एक्सपीरियंस, हाउ टू एनालाइज इट इफेक्टिवली फ्रॉम व्हाट आई लर्न एंड माय कोलीग्स लर्न, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू एज वेल। ठीक है। सो एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए अगर समवन इज नॉट यूजिंग लैपटॉप टुडे, दैट्स फाइन। अगर किसी को साथ सेटअप करना हो, अभी फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो वो भी कर सकता है। आई एम गोइंग टू गो वेरी स्लो, ठीक है। बट इफ यू स्टिल यू मिस थिंक कि डाउनलोड होने में टाइम लगेगा एंड ऑल दैट स्टफ, वी आर गोइंग टू अपलोड वीडियोस बट नॉट इंस्टेंटली, थोड़ा टाइम लगेगा। सो डोंट रिलाई ऑन वीडियोस कंप्लीटली, बट अपलोड हो जाएगी वीडियोस एंड देन यू कैन वॉच इट अगेन फॉर द सेटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है। सो सबसे पहले आपको जाना होगा anaconda.org पे एंड देन यू कैन गो ऑन डाउनलोड एनाकोंडा। सही है। और वंस जब ये खुल जाएगा तो हमारे पास ऑप्शंस आएंगे डाउनलोड करने के। आई थिंक एक मिनट स्टार्टेड। सही। सो यहाँ पर आपके पास विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स का वर्जन है। जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है करंट, यू कैन डाउनलोड दिस फाइल्स एंड सिंपल प्रोसेस है। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा कभी, बिल्कुल सिंपल है, बट कुछ मसला है विच आई विल कवर राइट नाउ। सबसे पहला मसला आएगा आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट, ताकि मैं आपको बता सकूं क्या होगा। सो आपके पास ये एग्जीक्यूटिव फाइल आएगी, यू हैव टू डबल क्लिक ऑन इट। सो ये एक दफा इंस्टॉल हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू अग्री नेक्स्ट, मर्जी है आपको जहां भी इंस्टॉल कराना हो। लेट मी चेंज दिस। ठीक है। ओके, मैं एक नया फोल्डर बना। एनीवन स्पीकिंग? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये कोई ऑफिशियल ग्रुप है कि वैसे स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है स्टडी के लिए? कौन सा ग्रुप? ये जो अभी हम ये कर रहे हैं क्विज की प्रैक्टिस वगैरह, ये जो अभी इस पे हम लाइन है गूगल क्लासरूम पे। गूगल क्लासरूम? जी जी। गूगल बेसिकली, अगर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर इनिशिएटिव जो ये डीएससी का है, या फिर आप गूगल क्लासरूम के असाइनमेंट्स की बात? सर ये जो अभी आपने असाइनमेंट लाइव लिया हुआ है, मतलब माशाल्लाह से काफी सारे स्टूडेंट्स को, ये पीआईएसी का ऑफिशियल चैनल है कि मतलब वैसे स्टूडेंट्स ने अपने तौर पे ज्वाइन किया हुआ है? नो 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 नो, ये पीआईएसी से रिलेटेड नहीं है। इट्स अबाउट गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब। ये बेसिकली गूगल के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। दे लॉन्च देयर प्रोडक्ट, दे वांट पीपल टू गो, लाइक कम्युनिटीज बनी होती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, एंड इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ आईबीए। सो डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स एंटायरली फ्रॉम आईबीए, उससे क्लब बना हुआ है एंड दे आर कंडक्टिंग दिस सेशंस लाइव। तो ये एक हफ्ते का, लाइक इट्स द 1 month आई वुड से, उसका बूट कैम्प है व्हिच विल गो फ्रॉम पाइथन बेसिक्स टू एडवांस। तो इट्स नॉट रिलेटेड टू पीआईएसी बाय एनी मींस। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये मतलब शायद पीआईएसी का नया इनिशिएटिव है शायद। थैंक यू सर। कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। ठीक है। सो वंस हमने जब कर दिया, सेटअप कर दिया, आई डोंट नो व्हाई इट्स ट्रबलिंग मी हियर, इसको मैं एक और कर देता हूँ। आई थिंक ये थोड़ा मसला कर रहा है, मैं अभी बताता हूँ इसमें। डेटा साइंस में मैं चला जाता हूँ, एक न्यू फोल्डर डेटा। Give me a second. Give me a second. ठीक है। सो वंस वी आर हियर ना, ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप, यू नीड टू चेक दिस पाथ। अगर आपने ये पाथ चेक नहीं किया, सो यू विल रन इनटू प्रॉब्लम्स कि आपका कमांड लाइन से लाइक इट वोंट रन द फाइल। व्हाई? क्योंकि एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है। आई एम नॉट टेलिंग यू द हार्ड वे कि जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाएं सेट करें, बिकॉज आई नो मेनी ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दीस थिंग्स, कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, व्हिच इज फाइन। सो प्लीज फॉलो द सिंपलर स्टेप कि यहाँ पर जाके चेक करें, इग्नोर दिस वार्निंग। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही डिस्कॉर्ड पे, गूगल मीट पर। गूगल मीट पे तो शेयर है। लेट मी चेक। सेटिंग अप एनवायरनमेंट आ रहा है। एक मिनट लेट मी शेयर इट अगेन। इंस्टॉलिंग विंडो। डिस्कॉर्ड पे विजिबल थी, डिस्कॉर्ड पे भी नहीं आ रही थी।
सर नहीं आ रही थी कि जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे थे वो नजर नहीं आ रहे थे। आई एम वेरी सॉरी यार, तू मुझे बता दो देता अरफान, तू कुड हैव टोल्ड मी। चलो कोई बात नहीं, मैं Yeah, दोबारा I was on Discord. अब दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है पूरी। हाँ आप जी कीजिए। सो व्हाट आई डिड Yes. वाज कि वो वहां तक फॉलो कर लिया था कि भाई यू हैव टू बस इंस्टॉल दिस एनाकोंडा, जो बताया था मैंने इंस्टॉलर। यस सर, यहाँ तक हो गया था। ग्रेट। तो उसके बाद जब हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, वी विल हैव दिस एग्जीक्यूटेबल फाइल, डबल क्लिक करना है इस पे, नेक्स्ट नेक्स्ट अग्री नेक्स्ट, नो नेक्स्ट नहीं होगा, आई नीड टू चेंज अगेन। तो ई में गया एंड डेटा, एक फोल्डर था मेरे पास, लेट मी फाइंड दैट फोल्डर, पेज ड्राइव हो गया। Okay, I'll create a new folder, data science, and I'll go inside it. फिर next, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि we need to check this path. Once we are here, हमें ये path को check करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा Python नहीं चलेगा। Why? Because इसमें environmental variable check करने पड़ते हैं, जो मैं नहीं सिखा रहा बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लोगों के लिए। तो अगर उसको उससे बचना है तो एनाकोंडा इंस्टॉल करें एंड इस बात को चेक करें, इग्नोर दिस वार्निंग एंड देन जस्ट प्रेस इंस्टॉल। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो आई एम जस्ट कैंसलिंग इट। एंड आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो बस क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल, ठीक है। सो कैन यू रिपीट? एक मिनट, मैं काम करता हूँ, मैंने ना इसके स्क्रीनशॉट्स सेव करे मैंने। सो आपके पास ये स्क्रीन आएगी, नेक्स्ट करना है आपने, उसके बाद आई एग्री, उसके बाद नेक्स्ट पे करना है। देन यू हैव टू इंश्योर के ये जो ऐड एनाकोंडा का पाथ है, यू हैव टू चेक दिस पाथ। अगर आपने चेक नहीं किया, इफ यू डिडंट चेक दिस पाथ, तो आपका पाइथन नहीं रन होगा, मसला करेगा, ठीक है। सो मेक श्योर यू डू चेक दिस पाथ एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन। वंस यू इंस्टॉल, योर एंटायर सेटअप विल बी डन। थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल बी इंस्टॉल्ड इंस्टेंटली, सही है। एनी क्वेश्चंस? कुछ सवाल है? Abdul Sabur, these sessions are going to be like 1 hour or 1.15, something around that. ठीक है। सो अब लग जाए कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा होगा। ये मेरा पाइथन ऑलरेडी, क्योंकि सीज का टूलिंग सर मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल है ना सर, ये स्पाइडर और ये पाइथन वाला एनाकोंडा। तो सर ये स्क्रीनशॉट वगैरह सर अपलोड नहीं करने होंगे ना इसके सर? नहीं, आपने अपलोड नहीं करना है। ग्रेट, आपका इंस्टॉल है तो अच्छी बात है। ये जो उनके लिए बेसिकली मैं बता रहा हूँ जिनके पास इंस्टॉल नहीं है, फर्स्ट टाइम दे आर सीइंग पाइथन, तो उनको हेल्प करने के लिए ये बताया जा रहा है, ठीक है। सो ग्रेट, नो प्रॉब्लम। तो हमने सेटअप कर लिया एनवायरनमेंट पहले कि एनवायरनमेंट कैसा होगा हमारा, कैसे हम किस पे हम काम करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर 2-3 चीजें और बता रहा हूँ कि हम लोग और क्या क्या कर सकते थे। तो एक काम करता हूँ मैं, अच्छा, अब जिनके पास अगर ये स्टेप नहीं होता, बहुत मसला आ रहा है करने में कि इंस्टॉलेशन हो ही नहीं रही है, बहुत परेशान हो गए, डोंट नीड टू वरी अबाउट, वी हैव अनदर टूल, गूगल का टूल है अपना, collab.research.google.com। ये आपके जीमेल अकाउंट से एसोसिएट होता है, ठीक है। सो आप बस जाएं, अगर साइन अप लॉग इन करने, खाली लॉग इन विद गूगल करना पड़ेगा आपको, एंड वंस यू डू दैट तो आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा। अभी मैं समझाता हूँ इसको किसमें क्या है, लाइक हाउ टू यूज दिस, हाउ टू नेविगेट, सो डोंट पैनिक, जस्ट रिलैक्स। तो बस इस तरीके से आपके पास खुल जाएगा टूल, ठीक है। अच्छा, अब साइड बाय साइड मैं जिब्रा नोटबुक भी खोल लेता हूँ कि उसमें कैसे काम करना है। सो वंस यू हैव इंस्टॉल्ड ना, आप लोग क्या करेंगे, यू विल मेक अ गुड डायरेक्टरी। मैं एक काम करता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक और मैंने बनाया न्यू फोल्डर, सही है। आई नेम इट सेशन, लेट्स से डे 1, ठीक है। अच्छा, अब आपको 2-3 चीजें और चाहिए। सो किसी ने गिट का नाम सुना हुआ यहाँ पर? गिट हब का, गिट हब का? यस सर। गिट हब किसी ने भी सुना, और बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना हुआ। सो कैन, जिसने नहीं सुना हुआ कैन दे मेंशन ऑन द ग्रुप कि भाई आई डोंट नो, ताकि वी नो कि कितने लोग को नहीं पता, ताकि मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊं कि क्या होता है, वरना मैं थोड़ा सा ऊपर से निकल जाऊंगा। बस चैट में ड्रॉप कर दो एंड अरसान विल टेल मी कि किसको नहीं पता, जिसको नहीं पता प्लीज वो ड्रॉप करे, इसको पता है देन दे डोंट नीड टू टाइप। कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पता, ग्रेट, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पता, सही है।
तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता रहा था, क्या, गेट डाउनलोड। तो नहीं पता तो कोई मसला नहीं, हम लोग पहले डाउनलोड करके देखेंगे कि क्या करना है इसका। तो जैसे हमने अभी एनाकोंडा डाउनलोड किया, तो गेट के भी आपके पास मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैक के, लिनक्स के, विंडोज़ पे आप डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। प्रॉपर सिंपल फॉर्मेट है, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमने जुपिटर नोटबुक, हमें सॉरी एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया। तो द ईजिएस्ट वे टू लॉन्च एनाकोंडा इज, यहाँ पर एनाकोंडा लिखें, ये खुल जाएगा। लेकिन आई डोंट प्रेफर दिस मेथड, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपको सब कुछ पता हो, लाइक you know how to launch from Mac, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज supposed to know all this stuff। ठीक है, तो ये अभी लॉन्च हो रहा है, तो टाइम लगता है, बिकॉज दैट इज व्हाई आई डोंट ओपन फ्रॉम हियर, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बिकॉज ये GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो थोड़ा टाइम लगता है लोगों ने। तो इन द मीन टाइम जिन्होंने इंस्टॉल करना है तो वो इंस्टॉल पे लगाते हैं अभी से, गेट को इंस्टॉल करना हो, और एनाकोंडा जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो भी इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है कि बस समझ नहीं आ रहा कि इंस्टॉलेशन में मसला हो रहा है, लाइक ऑल दैट स्टफ, कंफ्यूजन लग रही है, मुश्किल लग रहा है? Junaid, can you hear me? You can't hear me, why? अरसलान, आवाज क्लियर है डिस्कॉर्ड पे? अरसलान, डिस्कॉर्ड पे आवाज आ रही है, नहीं आ रही? लेट मी चेक। यस सर, आवाज आ रही है। So, Junaid, it is problem at your end, I guess. ठीक है, great. So, यही वाली ये PSP या फिर तेरा वाली प्लस नहीं है। ठीक है, जो मैंने एनाकोंडा नेविगेटर खोल लिया, हाँ इंस्टॉल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जो इसका माइक खुला रह गया। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हम डाउनलोड कर लेंगे तो हमने ये सर्च किया और ये हमारे पास एक इंटरफेस खुल गया। सो यहाँ पर हम बहुत सारे ऑप्शन है, सही है। सो जस्ट प्रोवाइड अ क्विक गाइडेंस के भाई ये सब क्या है। काइंडली म्यूट योरसेल्फ प्लीज एवरीवन, प्लीज म्यूट कर लो यार, थैंक यू। तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर और भी वगैरह भी। तो बेसिकली यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द पीपल यूजिंग इज जुपिटर नोटबुक। ठीक है, अब ये क्यों यूज करते हैं इसके भी तेरे बारे में बताता हूँ मैं कि इसमें क्यों यूज किया जाता है, बाकी चीजें प्रेफर ये क्यों किया जाता है। पहले मैं इसको लॉन्च करता हूँ, लैगिंग अ बिट, गिव मी अ सेक। तो इसको मैंने लॉन्च किया। Hello Nabil sir, can you please tell us how to run it with Git? हाँ, मैं बताता हूँ हाउ टू इंस्टॉल गिट। No, like how to use it. हाँ, बिल्कुल वो वाले पॉइंट पे मैं, जो लोग आज जिनको आता था पहले से पाइथन, डोंट वरी, यू विल टेक समथिंग फ्रॉम दिस सेशन एज वेल। गिट का मैं बताऊंगा 2-3 कमांड्स हाउ टू यूज इट, बिकॉज हमारी जो कोड रिपोजिटरी होगी वो आपको गिट पे मिलेगी। सो आई विल टेल यू लिटिल बिट 2 or 3 कमांड्स, सो यू विल डेफिनेटली गेट टू लर्न, डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। इन द मीन टाइम पहले मैं समझा दूं कि जो हमारा काम होगा, मेजरली जो हम काम करेंगे जो हमारा, वो होगा जुपिटर नोटबुक पे। तो आई वांट एवरीवन के वो आज से फेमिलियर हो जाए और आज के बाद वो खुद थोड़ा एक्सप्लोर कर लें, ताकि नेक्स्ट सेशन से पहले उनको पता हो कि भाई इस पे काम होगा। अच्छा, तो मैंने क्या किया, एनाकोंडा नेविगेटर से मैंने जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर दिया। सो ये मेरे पास एक खुल गया कुछ, सही है। डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, जस्ट क्लिक ऑन न्यू पाइथन 3, इस पर क्लिक कर दें तो एक नई नोटबुक खुल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग की अजम्पशन होगी कि भाई ये चल रहा है आपका इंटरनेट पे, विच इज वेरी रॉन्ग। ये आपका इंटरनेट पे नहीं चल रहा है, ठीक है। इधर यहाँ लिखा हुआ है लोकल होस्ट 888, ये आपके लोकल मशीन पे चल रहा है। इवन इफ यू क्लोज योर इंटरनेट, इट विल स्टिल वर्क परफेक्टली फाइन। सो डोंट अज्यूम कि भाई इंटरनेट पे चल रहा है बिकॉज इट्स ओपनिंग ब्राउजर। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट जुपिटर नोटबुक, इज ये ब्राउजर पे चलता है बट ये इंटरनेट से कनेक्टेड बिल्कुल नहीं होता, सही है। अनलाइक दिस, कोलैब इज कनेक्टेड विद इंटरनेट बिकॉज ये गूगल का एक टूल है, ये ऑनलाइन टूल है, बट ये आपके यहाँ लोकली इंस्टॉल्ड है आपके पास, एंड यू कैन यूज इट एनी टाइम विदाउट इंटरनेट। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। अच्छा, तो वंस यू हैव इंस्टॉल्ड, तो ये इंटरफेस मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, लाइक अरसलान क्लियर बता दो मुझे। आवाज आ रही है कि आप वीडियो चेक कर सकते हो डिस्कॉर्ड पे? क्लियर, बिल्कुल क्लियर है ना। आई थिंक इसका मसला उसका एंड होगा वरीशा, ठीक है। तो ये हमारी नोटबुक होती है। अब मैं इसको एक एक चीज बता दूंगा हाउ टू नेविगेट अराउंड इट।
सो इंटायर कोड मैं इसको जूम भी कर देता हूँ ताकि यू कैन सी इट मोर क्लियरली। सो हमारा सारा काम इस नोटबुक से हो रहा होगा। सो अब इसको समझना कैसे है, ये एक सेल होता है, सही है। यहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, मैं दिखाऊंगा थोड़ा बहुत कोड भी लिख के दिखाऊंगा। और ये हमारे पास इंटरफेस, ये फाइल है, यहाँ पर न्यू नोटबुक क्रिएट कर दो, ओपन कर लो, कॉपी वगैरह, सेव वगैरह, ठीक है। तो बेसिक कमांड इसमें हमारा काम होगा वो होगा रन करना, सही है। हमें फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखा है इस फाइल के अंदर, ठीक है, और मुझे इसको रन करना है। अभी डोंट वरी अबाउट कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं ये सब बताऊंगा, बट मैं बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इस सेल को रन करना मतलब चलाना। तो या तो मैं ये दबाऊं, रन का बटन दबाऊं, इसका एक शॉर्टकट भी है विच इज शिफ्ट प्लस एंटर। इसको याद रख लो, जिंदगी आसान हो जाएगी, बिकॉज यू विल बी नीडेड टू रन द सेल अगेन एंड अगेन। तो इसको याद रख लो, शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट एंड एंटर, ठीक है। तो जब कोई सेल रन हो रहा होगा ना तो यू विल सी ए स्टार हेयर। स्टार का मतलब है कि रनिंग में, और यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा रनिंग। अभी एक लाइन ऑफ कोड रन हो गया, यू माइट फेस प्रॉब्लम्स कि जब आप बड़े कोड पे काम कर रहे होगे तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो डोंट गेट पैनिक, थोड़ा टाइम लगता है रन होने में, डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल। तो स्टार लिखा हुआ आएगा, जब वंस इट इज रन तो ये नंबर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये सेल 2 मरतबा रन हो चुका है। अगर मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है, थर्ड टाइम रन हो चुका है। तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल सेल्स, फॉर एग्जाम्पल दिस प्लस बटन, मल्टीपल सेल्स, यू कैन डिलीट अ सेल, फॉर एग्जाम्पल ये कट है, बड़ा सिंपल है। यहाँ तक की लाइफ बड़ी सिंपल है, आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा, बिकॉज ये कुछ भी नहीं, यू यूज टूल्स एवरी डे, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अब सिमिलरली ये हमारे पास कोलैब है, कोलैब में बिल्कुल ऐसा ही है, गूगल का टूल है बट इट्स अ नोटबुक। तो यहाँ पर भी मैं कोई कोड लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और मैंने शिफ्ट एंड एंटर किया, तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, रन हो जाएगा सेल। पहले कनेक्टिंग लिखा हुआ है, जब अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, ये हो रहा है थोड़ी देर में, एलोकेटिंग। एक मिनट ना, रिकनेक्ट कर लूँ मैं इसको, ठीक, कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको शिफ्ट एंटर दबाऊंगा एंड ये प्रिंट कर देगा होपफुली, ठीक है, प्रिंट हो गया। सिमिलरली यहाँ भी मुझे कोड क्रिएट करना, कोड सेल्स क्रिएट करने हो तो यहाँ प्लस दबाता रहूंगा, सेल्स क्रिएट होते रहेंगे। और डिलीट करना हो तो यहाँ पर डस्टबिन जो बिन बना हुआ है इस पे क्लिक करते रहो, ठीक है। यहाँ तक की लाइफ में चाह रहा हूँ कि कोलैब भी आपको समझ आए, बिकॉज इट्स अ टूल विच विल बी यूजिंग एज वेल इन फ्यूचर। जुपिटर नोटबुक बिल्कुल सेम चीज है, इंटरफेस बिल्कुल दोनों का सेम है, तो यू कैन यूज बोथ। अगर आपसे इंस्टॉलेशन में मसला आ रहा है तो यू कैन यूज दिस ऑनलाइन टूल एज वेल, एवरी कोड विल वर्क ऑन बोथ प्लेसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अगेन मेरी आवाज एको हो रही है, प्लीज क्लोज माइक और म्यूट योर माइक, थैंक यू। तो यहाँ तक हमारा पास था कि हमने देख लिया कि इंटरफेस क्या है, इंसर्ट अ सेल हो गया, सेल अब ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपको सेल ऊपर चाहिए नीचे चाहिए, रन करना हो कोड को। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि व्हाई आई एम यूजिंग जुपिटर नोटबुक, मैं जुपिटर नोटबुक यूज क्यों कर रहा हूँ एज अ डेटा साइंटिस्ट, व्हाई आई एम नॉट यूजिंग ऑल दीज टूल्स लाइक स्पाइडर हो गया, पाइचार्म हो गया। इसका रीजन, इसका एक बहुत अच्छा रीजन है। इसका रीजन ये है कि आप जब कोड लिखेंगे ना, जब एज अ डेटा साइंटिस्ट आप लिखेंगे, सो यू विल नॉट ओनली राइट कोड, आप कोड के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे, बताएंगे कि भाई इस कोड में, इस सेल में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कोड खोल के दिखाता हूँ। लेट मी एक काम करता हूँ, डोंट गेट लाइक कंफ्यूज नहीं होना कि क्या कोड है, व्हाट इज दिस। आई एम जस्ट शोइंग यू कि कैसे लिखा जाता है, कैसे, व्हाई आई एम यूजिंग जुपिटर नोटबुक ओवर अदर प्लेटफॉर्म्स। कोलैब एंड जुपिटर नोटबुक का सेम थिंग। कैन यू सी दिस, यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, नोटबुक्स अलाउ अस टू राइट टेक्स्ट एज वेल, कि हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइक कोडिंग नहीं है, ये टेक्स्ट है, ये सिंपल, सही है। ऑब्वियसली ये मार्क डाउन टेक्स्ट है, इसमें भी आपको यू हैव टू यूज सम, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, हमें कुछ चीज बोल्ड करनी होती है, हम लोग क्या करते हैं, वी प्लेस इन 2 स्टार्स। सिमिलरली अगर हम यहाँ को हेडिंग बनानी है, बहुत सारे लोग यहाँ वेब डेवलपमेंट से फेमिलियर होंगे, यू कैन ऑलवेज यूज वेब डेवलपमेंट के जो HTML टैग्स होते हैं ना, H1 H2, टू मेक दिस नोटबुक्स मोर यूजर फ्रेंडली। प्लीज mute yourself kindly, please. एक मिनट, कहाँ से आ रही है? अमजद नबील अमजद। Guys, please mute yourself.
तो रिमूव कर दे सर। नाम ही नहीं मिल रहा उसका, रिमूव कैसे करूं? सबको म्यूट कर दे सर, सबको उसके म्यूट साथ और कर दे। WWE का साइन बना हुआ है। वो तो का बता दूं? Yeah, that is really annoying. Excuse me, Nabil. He's right on the third from the left, right below your screen. एक मिनट, कौन सा वाला है? Guys, that's really annoying because ये सेशन का टाइम जाया करता है बस. I can't see. Like सर्च करने का ऑप्शन क्यों नहीं है इस मीट में? अमजद अली, I think he's mute now. Let's leave it. तो अभी छोड़ देते हैं, वो म्यूट हो गया. बट प्लीज गाइस मेक श्योर यू आर म्यूटेड बिकॉज इस सेशन का टाइम जाया करता है. प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स रियल रिक्वेस्ट कि हमारा टाइम ज़्यादा जाया ना हो इन म्यूट करने में. वैसे वी आर ऑलरेडी टू मच यूजिंग टेक्नोलॉजी. डिस्कॉर्ड भी यूज हो रहा है एंड ऑल, मीट भी यूज हो रहा है. इट्स ऑलरेडी टेकन लॉट ऑफ टाइम एंड हार्डवर्क हमारी पूरी टीम का लगा हुआ कि वी हैव टू मेंटेन बोथ प्लेटफॉर्म्स साइमल्टेनियसली ताकि आप सबको एंटरटेन कर सके साथ. तो प्लीज डू मेक श्योर कि आप एटलीस्ट कंट्रीब्यूट इस सेंस में तो करें कि आप मेक श्योर योर माइंड्स आर म्यूट. आपको कुछ बोलना है तो बिल्कुल जरूर बोलें, बट डोंट डिस्ट्रैक्ट द एंटायर बूट कैम्प. ओके, तो हमारा एनवायरनमेंट सेटअप हो गया. हमने अब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? आई फॉरगॉट माई सेल्फ. तो हम लोग, मैं बता रहा था कि व्हाई वी यूज नोटबुक्स. इन नोटबुक्स वी कैन व्हाट वी कैन डू इज राइट दीज टेक्स्ट. इस तरीके से टेक्स्ट लिख देंगे तो ये लोगों के लिए पढ़ना आसानी होती है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कुछ मॉडल की ट्रेनिंग करवाई हुई है ऑब्जेक्टिव, तो अगर मैं अपनी नोटबुक किसी बिजनेस वाले इंसान को दूंगा, अगर उसे कोडिंग समझ नहीं भी आती है, ही कैन ऑलवेज रीड द डिस्क्रिप्शंस कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने मॉडल किस लिए बनाया है. यू ऑलवेज शुड नो कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं. ठीक है, डेटा सेट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है. सो ये मैंने, मुझे इसके लिए कोई अलग से टेक्स्ट फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है. मैंने नोटबुक के अंदर ही कोड भी है, इसके नीचे कोडिंग भी हुई है एंड यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी है. दैट इज द बेस्ट थिंग व्हाई डेटा साइंटिस्ट यूज जुपिटर नोटबुक्स या गूगल कोलैब फॉर दैट मैटर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ऑलराइट, तो हमने यहाँ देख लिया. अच्छा, मैंने एक चीज और कही थी कि आई विल टेल यू कि हाउ टू लॉन्च अ जुपिटर नोटबुक फ्रॉम द कमांड लाइन. सो बहुत सारे, जब आपके पास गिट इंस्टॉल हो जाएगा, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबने CMD बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा ना, विच इज फाइन. बहुत सारे लोगों ने ब्लैक स्क्रीन फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे. डोंट नीड टू पैनिक, यू नीड टू जस्ट गो हियर. जिस फोल्डर में आपको बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस फोल्डर में अपनी सारी नोटबुक्स आई मीन आपकी पाइथन का कोड मेंटेन रखना है. इस फोल्डर में जाएंगे एंड यू जस्ट हैव टू टाइप दिस कमांड, जुपिटर नोटबुक. ये कमांड तब चलेगी जब आपके पास एनाकोंडा इंस्टॉल्ड होगा प्रॉपर्ली. ठीक है, तभी चलेगी. यू कैन, ये जो मेरे पास गिट बैश है, यू कैन ऑल्सो डू इट फ्रॉम CMD. अगर इफ यू वांट टू ओपन CMD इन दिस, लाइक इसी फोल्डर स्ट्रक्चर में खुल जाए, तो यहाँ पर सर्च बार में लिखें CMD एंड प्रेस एंटर, तो ये ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी. एंड देन here you can type Jupyter with a Y and notebook. ठीक है, तो I am launching it from my Git bash because I like it from here. तो Jupyter notebook लिखेंगे और एंटर कर देंगे. तो ये भी वही काम करेगा जो इसने किया हुआ है, बट इसमें ये थोड़ा फास्ट है. It launches my Jupyter notebook instantly. देखें, फौरन आ गया और ये उसी फोल्डर में आया जहाँ मुझे चाहिए. Whereas जब मैंने यहाँ पर खोला था, I had all these files which are not useless to my, like not used in my code, पर मुझे यूज करनी पड़ी बिकॉज ये जो लॉन्च होता है डिफॉल्ट लोकेशन पे लॉन्च होता है. ठीक है, बट जो मैंने लॉन्च किया था अभी जुपिटर नोटबुक को, मैंने अपने फाइल के अंदर से कमांड लाइन के थ्रू एक कमांड लिखी जुपिटर नोटबुक. मैंने कमांड क्या लिखी है? जुपिटर स्पेस नोटबुक. इसको नोट कर लो अगर किसी को नहीं पता, पहली मरतबा सुन रहे हैं. ये कमांड जब आप लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे या फिर गिट बैश पे, सो इट विल ओपन. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. क्या मसला हुई? चला गया? ठीक है, ग्रेट. Naveed, जी, there's a question. Can you just briefly explain what a model is again? ऑल राइट. देखो मॉडल क्या होता है. मॉडल ये होता है कि सबने वो पढ़ा होगा ना, फॉर एग्जांपल रिग्रेशन. अगर नहीं पढ़ा तो दैट्स फाइन. हमारे पास एक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c. अब हम लोग, मैं एक सिंपल मॉडल की बात कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स मॉडल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ. ठीक है, तो अगर सपोज करते हैं
मॉडल होता क्या है, समझते हैं उसको ना। वैसे ये बात का लेसन था, लेकिन मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ, मुझसे पूछ लिया था किसी ने। तो हमारे पास अगर y और x हो, आई थिंक आई शुड स्किप बिकॉज ये कंफ्यूज हो जाएगा आज के लिए। मॉडल बेसिकली मैं समझा रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में कि मॉडल ये होता है कि हमारे पास डेटा है बहुत सारा, टेबुलर डेटा, सही है। हमने कुछ किया उस पर, समझ लो कुछ भी किया हमने, वो आगे आएगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज लाइक फिर सेशन में जो हमारा टॉपिक है मुझसे आउट हो जाएंगे। हमने उस पर कुछ ट्रेनिंग करी, दैट्स अ ब्लैक बॉक्स फॉर यू नाउ, ठीक है। हमने कुछ ट्रेनिंग करके उसको मॉडल बनाया और फिर हमने उससे प्रिडिक्शन करी। आपको जो सवाल है मॉडल का, वो बेसिकली इट्स इक्वेशन समझ लो, या इसको अभी फिलहाल समझ लो इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स टाइप की फंक्शन है, उसमें हम पास कर रहे हैं अपना इनपुट डेटा और उसका आउटपुट आ रहा है हमें हमारा आंसर। आई डोंट वांट टू टेल दिस राइट नाउ बिकॉज वो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। प्लीज हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल। इट्स जुजैर हियर, जस्ट टू कीप इट सिंपल, मॉडल को आप ऐसे समझ लें कि मॉडल एक ब्लैक बॉक्स है और हमारे पास डाटा है। डाटा हमारे पास हम ब्लैक बॉक्स में डालेंगे, ठीक है, वो उसको लर्न करेगा और फिर इन फ्यूचर हम उस ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हुए फ्यूचर की कोई चीज़ प्रेडिक्ट करें, जैसे कि नवीन ने आपको बताया कि हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करें। तो इस तरह समझ लें, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझा रहे हैं। इंशाल्लाह आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो आपको इसके बारे में और भी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। थैंक यू सर। तो यस, बेसिकली जैसे उसने बताया कि ब्लैक बॉक्स समझ लें अभी इसको, एंड यू विल गेट टू नो ऑल दीज बेसिक्स लेटर ऑन, ठीक है। सो हमने अभी लॉन्च कर दिया गिट को, यहाँ से भी सीख लिया कमांड लाइन से कैसे करते हैं, और हमने इससे भी सीख लिया। सो नाउ यू नो कि हाउ टू लॉन्च अ जुपिटर नोटबुक। तो अब हम आ जाते हैं हमारी, एक्सक्यूज मी सर। यस सर, ये टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज करें गिट के लिए, ये कोई फर्क पड़ेगा या वी जस्ट गो अहेड विद एनीथिंग? नो यू कैन, मतलब यू मीन ये चीज कमांड प्रॉम्प्ट? नहीं सर, इंस्टॉलेशन के दौरान ही इज आस्किंग कि चूज द डिफॉल्ट एडिटर, तो विम यूज करें, नोटपैड यूज करें, C++ यूज करें, डज दैट मेक एनी डिफरेंस? नो, आई डोंट थिंक सो इट मेक्स अ डिफरेंस। एंड ये आपको कहाँ पर पूछ रहा है, लाइक इंस्टॉलेशन के वक्त, एनाकोंडा के वक्त पूछ रहा है? नहीं सर, गिट के सेटअप के अंदर पूछ रहा है। ओके ओके ओके, यू कैन इंस्टॉल एनी, कोई भी इंस्टॉल कर लो, मसला नहीं। ओके सर, थैंक यू वेलकम। तो ठीक है, यहाँ तक हमें समझ लें। नाउ इट्स द टाइम कि हम लोग ये समझें कि गिट क्या है। अच्छा, गिट इज बेसिकली वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम। मैं इसको बड़ी आसान ज़बान में समझाऊंगा। इमेजिन यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, बहुत सारे लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग कैनवा पे करी हो, कुछ भी करी हो, या फिर आपने एक्सेल पे काम किया हो, फाइनेंस वाले बंदे हैं, बीबीए के बंदे हैं, हर किसी ने रिपोर्ट बनाई है। मैंने फॉर एग्जांपल सपोज कर लें बीबीए वाले रिपोर्ट बनाई है, फाइनेंस वाले समझ लें मैंने कोई एक्सेल पे काम किया हुआ है, कोई ग्राफिक डिजाइनर समझ लें मैंने कोई अपना एक ग्राफिक बनाया हुआ है, पोस्टर बनाए हुए हैं। तो इमेजिन हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि भाई चेंज कर दिया, सो वी ट्राई टू मेक डिफरेंट फाइल्स, कि हम लोग चेंज 1, चेंज 2, चेंज 3। अगर ऐसा कोई हमारे पास प्रोसेस बन जाए जिससे हमें ये इतनी सारी फाइल्स क्रिएट ना करनी पड़े, एक ही फाइल के अंदर हम लोग ट्रैक कर सके कि भाई हमारा कौन सा वर्जन था, वुडंट दैट बी ग्रेट? ये हमारा प्रॉब्लम गिट ने सॉल्व कर दिया। अब प्लीज म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि किसी का माइक खुला रह गया प्लीज। तो अब ये वाला प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम मैंने बताया, क्या प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो हम क्लाइंट को देते हैं, बी इट ग्राफिक डिजाइनिंग फाइल, एक्सेल की फाइल या रिपोर्ट, हम लोग उसके मुख्तलिफ वर्जन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली हेडिंग, ये म्यूट हो जाओ प्लीज, थैंक यू। हम लोग मुख्तलिफ फाइल्स बनाते हैं ना उसको मेंटेन करने के लिए, कि भाई पहले हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन, अब कोई और बंदा जा रहा है, उसके अंदर हमारे टीम का मेंबर है, उसने लिखा नेक्स्ट पार्ट। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्रिएट डिफरेंट फाइल्स, फोल्डर्स, के भाई ये हमारा पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2, और ये फाइनल। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइन को ये बात से पता होगा कि वी क्रिएट टू मेनी फाइनल्स, तो उससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं गिट को। गिट इज बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम। हाँ, वो हमारे वर्जन को कंट्रोल करता है कि हम लोग कुछ भी चेंज करते हैं ना, गिट ट्रैक करता रहता है कि भाई अच्छा इस बंदे ने चेंज किया, आई नीड टू ट्रैक दिस। तो हमें उसके लिए एक फाइल चाहिए होती है और हम उसी पे ट्रैक करते रहते हैं और हमारा सारा काम आसान हो जाता है। ये मैंने लेमैन टर्म में समझाया, ठीक है, लेमैन टर्म में, आसान जबान में। तो हमारे लिए जो हमारे जो बूट कैम्प में इसकी जो सारी प्रोजेक्ट फाइल्स होगी वो सारी मेंटेन होगी यहाँ पर। सो यू कैन ऑलवेज यहाँ पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ ऐसे डाउनलोड जिप। तो जिप तो सबको पता है, जिप रार, सो यू कैन ऑलवेज एक्सट्रैक्ट, कि आपके पास ये सारा कोड आ जाएगा। आज का ये सिर्फ 2-3 चीजें हैं, ये सब भी आ जाएगा। अब हम लोग थोड़े कनेक्ट करिए। Excuse me, कोई बोल रहे? I have a question, Nabil. हाँ प्लीज आस्क, पूछो। सर ये कनेक्ट कैसे करेंगे गिटहब सर? ये हम अभी जो पाइथन के साथ, अगर पाइथन से हम प्रोजेक्ट करते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, गिट इंस्टॉल कर लिया, अगर आई एम अज्यूमिंग आपने गिट इंस्टॉल कर लिया है,
सो लेट मी ओपन Installed है sir already. ठीक है, आपको जाना है github.com पे, Yes sir. आपने अपना अकाउंट बनाना है, बेसिक प्रोसेस साइन अप प्रोसेस है, ठीक है, यू नीड टू क्रिएट योर अकाउंट। Yes तो sir, क्या हुआ है सर ये। सब कर लिया आपने, ग्रेट। उसके बाद लेट्स आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग। अच्छा, फॉर दोज पीपल जो कि अब बिल्कुल बिगिनर्स हैं एंड दे नो नथिंग, बिल्कुल पैनिक नहीं हो, इससे डेटा साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, सही है। येस, यू माइट नीड टू नो दिस इन फ्यूचर बिकॉज यू विल बी एक्सपेक्टेड कि आपको गिट आता हो, डेफिनेटली यू विल बी एक्सपेक्टेड, बट फॉर नाउ यू आर बिगिनर्स एंड आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एनीथिंग अबाउट इट, ओके। जस्ट इमेजिन, कुछ आपको मैं जो ये बता रहा हूँ, जो बिगिनर्स है उनको मैं क्लियर कर दूं कि भाई व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर आपको गिट नहीं आता, यू जस्ट डाउनलोड जिप हियर, तो आपके पास ये पूरा कोड खुद ब खुद आ जाएगा। फॉर दोज पीपल जिनको गिट आता है एंड दे वांट टू नो कि भाई ये भी हम सीखना चाहते हैं, बिकॉज दे डेफिनेटली नो कि इसकी डिमांड कितनी है वर्जन कंट्रोल सिस्टम की इन द मार्केट, सो दे डेफिनेटली वांट टू लर्न, तभी वो लोग पूछ रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल देम 4 कमांड्स ओनली, बेसिक वाली। अगर बिगिनर्स वाले चाहें तो उसको ऑब्जर्व कर ले, वरना ये ऑप्शनल है, उनको समझें कि बस एक स्टोरी चल रही है, दे डोंट नीड टू पे अटेंशन मच टू इट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर गिट इंस्टॉल प्रॉपर्ली हो चुका है ना, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, सॉरी, गिट माइनस वर्जन, ठीक है। सो गिट माइनस वर्जन बताएगा मेरे पास, एक मिनट, अभी भी कोई आ रहा है। सो जब मेरे पास सक्सेसफुली गिट इंस्टॉल हो जाएगा, तो दिस yes, I have a question, Nabil. yes, Just as you said that in Jupyter Notebook, we can use like जब हम text देते हैं, paragraph देते हैं, we can simply use HTML. But by using HTML, will we have to provide the header files or just simply type the syntax? you're asking about in Jupyter Notebook, the markdown files? Yes, sir. Yes. Okay. So basically, let me show the code इसका. This is basically markdown text. इसमें क्या है? I have used this No, hash text. like Go ahead. like for example, अगर हम HTML में heading देते हैं, तो like we use the symbols and H1, तो like ये पे हम simply एक ही cell में रख के लिख लें. Definitely, you can use here H1 tags as well. I know it works. I have tried here. You can try it out, H1 tags, and it does work. ठीक है, but obviously Markdown की अपनी language भी है. It accepts HTML, but इनके अपने कुछ होते हैं. For example, triple hash means के ये third heading बन जाएगी. Double hash means ये second level की heading हो जाएगी. Single hash means first level की heading हो जाएगी. Star means bullet point बन जाएगा. Hyphen means bullet point बन जाएगा. तो इस तरीके से इसके अपने syntax होते हैं. We'll not go in very deep. हम लोग simple plain text भी लिखेंगे ना. If I don't put any of these, तब भी ये लिख लेगा. ये text को absorb कर लेगा. That is why it's very powerful. ठीक है. तो ये बताना था मुझे। तो हम लोग कहाँ थे? Thank you so much, Nabil. No problem. तो हमने सबसे पहले चेक किया git माइनस वर्जन से। It will tell अगर हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया git, तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्जन लिखा हुआ आ रहा है कि भाई आपके पास git इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो इट विल से कि आपकी कमांड फाउंड नहीं हो रही, समझ जाना कि इंस्टॉल नहीं हुआ इसे, ठीक है। वंस हमारे पास इंस्टॉल हो गया, व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज आई विल क्लोन माय ओन रिपोजिटरी। क्लोन का मतलब क्या होता है? कॉपी, किसी कॉपी करना, कंट्रोल सी, सही है। तो क्लोन का मतलब वही होता है कॉपी करना। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कोड यहाँ गिटहब पे पड़ा हुआ है मेरे पास मेरे अपने कंप्यूटर में आ जाए। अभी गिटहब पे एक तरीका क्या था, आसान तरीका, जो अभी जो बिगनर्स हैं वो यूज कर ले तो बेहतर है, डाउनलोड जिप। जिप से क्या होगा, मेरे पास एक फोल्डर बन के आ जाएगा, जिप का डाउनलोड हो जाएगा, एंड देन आई कैन एक्सट्रैक्ट इट एंड देन सारी फाइल उसके अंदर होगी। लेकिन अगर मुझे लाइक प्रोफेशनल वे में करना है, जो कि यूज होता है इंडस्ट्रीज में, वो होता है गिट का मेथड, ठीक है। तो गिट से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने गिट इंस्टॉल कर लिया, सेटअप हो गया, गिट चेक कर लिया, गिट माइनस वर्जन से कि हमारे पास गिट इंस्टॉल्ड है। उसके बाद हम लोग करेंगे इसको कॉपी करेंगे। ये कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब ये हमारे गिट की स्ट्रिंग है, URL, सही है। सो इफ आई वांट टू क्लोन द नोटबुक, लेट मी गो बैक। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ दोबारा। फॉर एग्जाम्पल ई के फोल्डर में DSC फाइनल वर्कशॉप्स, नाउ आई एम हियर। सो गिट माइनस वर्जन से चेक कर लिया सर, गो अहेड। यस, अगर आपको क्वेश्चन है अभी तो आप प्लीज ड्रॉप करते हैं, मैं आपको इसके बाद बताएगा ताकि बार बार ब्रेक ना हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे एक कमांड है, लेट मी शो द स्लाइड्स फर्स्ट। हम लोग सिर्फ 4 कमांड से फोकस करेंगे। गिट क्लोन, गिट क्लोन की कमांड,
गिट क्लोन क्या करता है, हमें कोई यूआरएल कॉपी करनी है, सही है, कोई गिटहब पे यूआरएल पड़ा हुआ है एंड वांट कि हमारे पास उसकी कॉपी अपना वर्जन ऑफ हमारे डेस्कटॉप पे आ जाए, तो हम लोग गिट स्पेस क्लोन, हमें इसको भी रट्टा नहीं लगाना, मतलब समझ रट्टा नहीं लगाना, हमें तो कॉपी, ये हर जगह अवेलेबल होता है, तो हमने गिट क्लोन यूज करा। उसके बाद जो ये आपका प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर में हम ये यूआरएल डालेंगे, ये वाला, या फिर जो यहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है गिट ऐड, मैं इस बात में आता हूँ। सबसे पहले हमें जो आज इसका काम है वो इसका काम है गिट क्लोन का, तो हम लोग यहाँ पर गए, हमने लिखा गिट स्पेस क्लोन, मतलब कीवर्ड है, क्या है ये कीवर्ड है, हमने गिट स्पेस क्लोन, और उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे यूआरएल को, कॉपी किया ऐसे मैंने यूआरएल, और मैंने यहाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आर यू श्योर? पर मैंने तो पूरी स्क्रीन, अब हो रही है, अरसलान स्क्रीन दिख रही है? शेयर हो रही है। आई थिंक आपका नेट थोड़ा स्लो होगा, ठीक है। तो हमने गेट क्लोन किया और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया यूआरएल। सो मैंने क्या किया, मैं रिपीट करता हूँ, गेट इज अ कीवर्ड, सही। गेट को मैंने इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप में, इसको पूरा कॉन्फ़िगर वगैरह सब कुछ कर दिया, फिर इसकी कमांड आई, मैंने CMD खोल लिया, कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं इसे, या फिर मैंने गिट बैच खोल लिया, गिट बैच खोला, मैंने कमांड लिखा गिट स्पेस क्लोन स्पेस, मैंने यूआरएल लिखा, और जब मैं ये एंटर करूंगा ना, तो अभी तो फिलहाल ये कह रहा है कि एग्जिस्ट इज नॉट एम्प्टी डायरेक्टरी, ठीक है। तो ओके, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैंने जिस फोल्डर में बनाया ना, यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं काम करता हूँ, एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ सैंपल का, और मैं इसके अंदर जाके ये वाला काम करता हूँ, गेट क्लोन स्पेस, ठीक है। तो अब ये क्लोन हो रहा है, और ये बड़ा एक यूजफुल है कि आपको कभी भी कुछ क्लोन करना हो इंटरनेट से, गिटहब से, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब मेरे पास एग्जैक्टली सेम चीज जो मेरे गिट ऑनलाइन पड़ी हुई थी मेरे गिटहब पे, वो एज इट इज मेरे पास उठ के मेरे पास लोकल मशीन में आ गई, यू कैन सी एवरीथिंग इज हियर, ठीक है, नोटबुक भी आ गई। तो इस तरीके से यू कैन ऑलवेज क्लोन, अगर आपको आता है क्लोन करना। उसके बाद मैं बाकी कमांड्स आज सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट के जो बिगनर्स हैं वो डर के लाइक समझेंगे इट्स वेरी हार्ड एंड दे कैन नॉट डू, आई डोंट वांट देम टू फील लाइक दैट, तो मैं बस समझा रहा हूँ उसको भी। तो गिट ऐड का मतलब होता है कि आपको कोई चीज पुश करनी है, लाइक अभी फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चेंजेस करी है, सपोज कर लो मेरे पास कोई ग्राफिक का काम था, पोस्टर मैंने बनाया था, अब मैंने पोस्टर नया वर्जन बनाया कि भाई अब इसमें मैंने एक लोगो लगा दिया, क्लाइंट ने बोला ये लोगो मुझे चाहिए इस पोस्टर पे, ओके आई डू दैट, वो कर दिया। अब मुझे चाहिए कि अब मैं उसको अपने गिटहब पे पुश करूं, सो व्हाट आई विल डू इज पहले उसको ऐड करना पड़ेगा, स्टेजिंग एरिया होता है उसका, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गिट स्पेस ऐड और फाइल नेम। फॉर एग्जांपल मेरी फाइल का नाम था poster.png, सही है, सपोज कर लो, तो गेट ऐड poster.png और स्पेस डॉट, इसका मतलब डॉट क्या करता है, जब मैं डॉट लिखूंगा ना, तो इस फोल्डर में डायरेक्टरी में जो भी फाइल है सारी को वो कर देगा कि भाई अब इन सबको ट्रैक रखो। गेट एक टूल है, समझ लो, वो बना हुआ है, कोडिंग हुई उसके पीछे। गेट क्या करेगा, जो भी मैं चेंजेस करूंगा इस रीडमी फाइल में, इस फोल्डर के अंदर तक भी हत्ता, तो वो सब ट्रैक रखेगा कि व्हाटएवर आई एम डूइंग, कि कोई भी एक लाइन भी चेंज करूंगा ना, गेट बता देगा कि इस बंदे ने यहाँ पर चेंज किया हुआ है। तो ये टूल सिर्फ प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकते, इवन डिजाइनर्स कैन यूज, इवन दोज पीपल विद BBA पीपल कैन यूज, हर कोई यूज करते हैं इस टूल को, ठीक है। उसके बाद हम लोग बताते हैं कि गिट कमिट का मैसेज, कि हमने ऐड कर दिया फाइल को, अब हमें कमिट करना है। कमिट समझ लें कि भाई हमारे लिए एक मैसेज है कि भाई हम बताना चाह रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं कि भाई मैंने ना सपोज कर लो कि मैंने फाइनल लिखूंगा, मैं गिट कमिट, ये मेरा फाइनल वर्जन है, ठीक है। तो मैंने एक मैसेज, ये वाली कमांड इस काम में आती है। और उसके बाद आखिरी होता है कि भाई गिट पुश, मैंने कमिट कर दिया, आई एम सेटिस्फाइड विद माय वर्क, अब बस इसको गिटहब पे पुश करो ताकि पूरी दुनिया देख सके। तो गिट स्पेस पुश, ठीक है। अब इसके बीच में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती है कि भाई रेफरेंसेस एरर एंड ऑल दैट स्टफ, बट यू कैन ऑलवेज गूगल दैट स्टफ और वो फाइंड कर सकते हो, बिकॉज ये बूट कैंप इज नॉट अबाउट गिट। मुझे खाली बेसिक्स बताने थे आज, ताकि जो लोग सेशन ले रहे हैं दे कैन टेक अ लर्निंग फ्रॉम दिस, ताकि उनके लिए एक्जैक्टली बोरिंग ना हो, ठीक है। तो आई होप ये थोड़ा क्लियर है, अगर नहीं हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी और यू कैन पोस्ट हियर। अच्छा, अबाउट डिस्कॉर्ड में आपको एक चीज बता दूं कि यू कैन, वी हैव क्रिएटेड सम चैनल्स हियर, रूल्स का सबने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर कुछ चैनल्स है हमारे पास, हेल्प के सेशंस है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए सो यू कैन ऑलवेज पुट देम हियर। जब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कोडिंग में बहुत सारे इश्यूज आएंगे, यू कैन ऑलवेज पुट योर स्क्रीनशॉट हियर एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स। माय एंटायर टीम, इवन यू कैन गाइस कैन हेल्प ईच अदर, हमारी कम्युनिटी बन रही है, हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। I can help anyone if my free, मेरी टीम पूरी है, they will help you out, and if any one of you know the answer, you can always help them as well, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप है यहाँ पर जो हमारे पास हो रहा है, बट डोंट स्पैम हियर प्लीज गाइस, कोई इंपॉर्टेंट चीज हो तो यहाँ पर डिस्कस करें। और जो हमारा अभी स्ट्रीम के लिए यूज हो रहा है, आज लाइव सेशंस इस पे हो रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि हमारा नेक्स्ट सेशन भी इस पे होगा या फिर मीट पे होगा, आई लेट यू नो डिपेंडिंग ऑन कितने लोग आ रहे हैं,
we'll decide that and we'll convey you on either on Discord or WhatsApp as well. सही है? So stay updated there. ठीक है? इसके अलावा ये सब मैंने बता दिया आपको, मैंने बता दिया कि आपको पोर्ट फाइल्स कहाँ से मिलेंगी. अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सेशन का हमारे पास एक नया फोल्डर आ जाएगा सेशन 2 के नाम से, और इस तरीके से यहाँ पर सारा मेंटेन रहेगा. सो कैन ऑलवेज गो एंड क्लोन दिस फाइल्स. अच्छा, समवन एल्स हैज जॉइंड, लेट मी. ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर टिल हियर. गिट की बेसिक्स अगर आपको नहीं समझ आए, सो प्लीज इग्नोर दिस सेशन, इग्नोर दिस लाइक गिट बेसिक्स. इट्स नॉट रिलेटेड टू द डेटा साइंस राइट नाउ. सो लेट मी गो टू द जुपिटर नोटबुक अगेन. तो हमने यहाँ पे सीख लिया था कि इस इंटरफेस के बारे में, वी नो कि हाउ दिस वर्क्स. So now let's print our first program. Now let's understand it. I'm going to print my first. Whenever you learn a new language, it's like you can say it's stigma. Like you can say it's a practice. We print hello world program. So I'm going to print here hello world. What does print do? Usually it's simple. Like we can understand that print means something to print, and what I'm providing is the string. जो आप आगे पढ़ेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि मैं आज आपको सिखा रहा हूँ स्ट्रिंग, बट यू आर प्रोवाइडिंग अ टेक्स्ट है. सपोज कर लो कि टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हो इन इन्वर्टेड कोट्स एंड इट इज प्रिंटिंग दैट. अब इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड डेटा साइंस, आपको समझ नहीं आ रही, यू फील कि पाइथन इज वेरी अमेजिंग, यू वांट टू डू स्टफ विद इट, so I have created a small program here. Let me show that. So even though if you don't know programming, I want to show that programming through what you can do, what wonders you can do without ये कोई data science का code नहीं है, it's simple programming code. It's a game basically, which I'm going to play with few of you. It's a game about a guessing game. तो ये game क्या करती है? Basically it will accept random numbers. It will generate a random number, a secret number which you will not know, and then it will ask the user to guess the number. सही है? User से बोलेगी guess the number. If the user guess the number correctly, the game will halt. मतलब stop हो जाएगा. But if the user fails to guess the correct number, then it will keep on asking for another number. It will provide some help. Maybe too high, too smaller number, maybe too low, too larger number. And if you won the competition, then it will say congratulations, you have won it. So let's start. Anyone who guys who would want to volunteer for this game, will be ek do aa jaye, bas I want to show कि what is the power of Python and what you will be able to do. I'm here. Can you name yourself? Hussain Shah. All right, Hussain Shah is volunteering for anyone else? I'm here. All right, Arman as well. So let's go with Hussain Shah and Arman. Hussain Shah and Arman, you will be having one chance each. पहले Hussain Shah बताएंगे अपना guess and then Arman, and then we'll see कि कौन सही से guess कर सकता है. It's a very simple game. I am not saying it's a very complex game in Python I've made. It's a very simple game to know to tell the beginners what they can do with this programming language. So let's start. Hussain, you can give me first guess of yours, a number between 1 to 100, inclusive. 56. All right. Okay, your number is very too low. Now the next participant, you can tell the number. 78. 78. Great. You can now Hussain's turn. 82. 82. Great. Now you can choose a smaller number, somewhere in between 82 and 78, I guess. 92. 92. Too smaller number. I think you need to choose something between 70 and 82. That's what I figured it out. 80. 80? Yes, 80. Correct. So you see how this simple game was able to evaluate. कि हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने एक गेम बना दिया and we are amazed कि भाई how people are making these games with simple few lines of code. It's nothing. It's simple English. अगर आपको पढ़ेंगे भी ना, if you don't know anything about Python, you will still be able to make it okay. It's just print किया हुआ है and then he's used simple if logic and else logic and that's it. You have made it your first ever game in Python and something which you can brag on everywhere कि भाई यहाँ game बनाई है मैंने. So I want to give the challenge अभी नहीं, but आप लोग का जो आज तक का अभी जो हमने किया है, अगर किसी को इसमें confusion है, कुछ नहीं समझ आया, so you can always can ask because now we are having a official QA session, 5 to 10 minutes because we are already past time. तो कोई मसला है तो अभी पूछ लो because आज हमने कुछ भी नहीं किया. We have सब printed, हमने अपना environment setup किया, हमने एक simple सा hello world का program print किया and sprint का मैंने कुछ भी नहीं बताया कि what is sprint because we are going to study in the next few sessions कि क्या है print and other data types as well. So आज सिर्फ बताने का मकसद ये था कि what to tell you what is data science, कि why you are want to pursue this field, इसमें क्या है and आपको क्या क्या tool इस्तेमाल करने पड़ेंगे
and some motivation for those who are just beginners. They think they are from business background and CS people would know how to code and they don't know how to code. तो इसमें कोडिंग की लॉजिक इतनी नहीं होगी. You would have to be a good problem solver, a dedication. थोड़ा बहुत आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा definitely, and that we'll guide through different links and resources. But if you stick with us, you will definitely learn a lot. And lastly, हमने जो बताया था कि end में competition होगा Datathon का Kaggle पे, and you will really learn a lot from that as well. So please, if you have any questions now, you can ask or drop in the chat, and Arslan will tell me. Nabil, Yes. like you just gave the challenge. It was the challenge like, what if you wanted to quit the game in middle, right? Yes. So what if like we included loop in it? Like run this game as long as the user for example, press E to exit. As long as the user press E, the game will exit. Exactly. That was the challenge, but obviously I don't want to tell it right now because I know people don't even know how to code. And if I just crack on, you can always take an user input and check another statement. If user input is quit and then quit the game, you can break out of the loop. But that will be very like advanced, so I don't want to confuse them. After the first week, we will give this challenge. कोई करना चाहेगा इस पे, and then we will accept the assignment as well, maybe probably. So अभी बस let's keep it simple till here ताकि लोग confuse ना हो जाए इस पे. Any other question related to session या कोई अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा कि whether this field is for them. अभी people are still confused. They want to know what more they can do with data science. They can always ask me.